उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic, and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. बी सुदर्शन रेड्डी ने 16 वर्ष से अधिक समय तक देश की संवैधानिक अदालतों में अहम जिम्मेदारी संभाली। जुलाई 1946 में जन्मे न्यायमूर्ति रेड्डी को 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 5 दिसंबर 2005 को उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वे 12 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और 8 जुलाई 2011 को सेवानिवृत्त हुए। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। वे भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। सुदर्शन रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के अकुला मायालरम गांव में हुआ था। उनका परिवार एक कृषि परिवार था। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1971 में लॉ पास किया। अपने करियर की शुरुआत रेड्डी ने सिविल और संवैधानिक मामलों की प्रैक्टिस से की और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रताप रेड्डी के साथ काम किया। इसके बाद 8 अगस्त 1988 में उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर नियुक्त किया गया और वे केंद्र सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बने। 1993 में वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइजर भी रहे। न्यायिक करियर में आगे बढ़ते हुए रेड्डी 2 मई 1993 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त किए गए। इसके बाद 5 दिसंबर 2005 को वे गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। सुदर्शन रेड्डी को 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया और 8 जुलाई 2011 को वे रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद मार्च 2013 में उन्होंने गोवा के पहले लोकायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। हालांकि अक्टूबर 2013 में उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुने जाने पर किस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, आइए सुनते हैं। This is an ideological fight, brother. This is going to be an ideological fight. The country doesn't know the reason behind the resignation of the last vice president, Dhangarji. All are mysterious things happened. Country doesn't know the reason why he resigned from the vice president of India. Therefore, these on one side we are fighting for the constitutional rights, fight against SIR, and fight for the voter right. Therefore, this country is facing a biggest ideological issues. Therefore, entire opposition fighting for ideology. To save the constitution. The political message is this is an ideological struggle, ideological fight. So the opposition parties, all the parties come together to choose one single candidate as against a candidate who comes from a Hindutva background, a RSS background, and we are opposing the BJP candidate. And this is a divisive politics which they've been propagating, trying to propagate in this country. And that is what our answer to that is to bring in a person who values the constitution. They are trying to do away with the constitution. They've never respected the constitution or the parliament.
The candidate which the opposition has chosen is a person who respects the constitution of this country and also the people of this country. Ma'am, what about numbers? What about numbers, ma'am? People who care about this country, people who believe in the democracy and it has to be upheld, will definitely vote for the opposition candidate, Mr. Sudarshan Reddy. Thank you. The CTR is also from Tamil Nadu, so election against Tamilian versus Tamilian. This is an ideological fight. It's much larger than that. And just because you have a candidate from Tamil Nadu doesn't mean the BJP cares about Tamil Nadu, the Tamil language or the values of Tamil Nadu and the people of Tamil Nadu. They haven't not allotted the funds which Tamil Nadu has been asking for. They don't care about the language. They're imposing Hindi. And even our history, they're trying to rewrite it. So what respect do they have actually for the people of Tamil Nadu? Nothing. Thank you. देखिए, हमारे विपक्ष नहीं चाहता कि भारत की जो परंपरा है, इस परंपरा में हमने देखा जब हम अपोजिशन में थे, हमने बहुत बार सत्ता पक्ष की जो कैंडिडेट होते हैं उनको हमने खड़ा किया, उनको समर्थन किया और हमें पता है कि जीतने तो हम ही वाले हैं, लेकिन फिर भी वो हम वाले ही जीतने हैं, हमें ही जीतना है, तो फिर भी वो ऐसे कैओस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अब विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं रहा, विपक्ष सिर्फ कैओस के ऊपर जिंदा है कि कैओस करेंगे तो कुछ हो जाएगा। इवन दे डोंट नो व्हाट विल हैपन, दे डोंट नो, और उनका प्लानिंग भी नहीं है। वो सिर्फ कैओस का प्लानिंग कर रहे हैं कि कैओस से कुछ निकल जाए और वो प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसे थोड़ी प्रधानमंत्री देश में कोई बनता है। इसके लिए तपना पड़ता है, धूप में पिघलना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। जैसे मोदी जी तैयार हुए ऐसे करना है। राहुल जी को वो रास्ता चुनना चाहिए। बता दें कि पिछले महीने जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कुछ समय पहले उपराष्ट्रपति पद के इलेक्शन का चुनाव कार्यक्रम तय किया था। ये चुनाव 9 सितंबर को होगा। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।